Hello guys, welcome to my channel Sarcastic Diva. I am Isha Arora and today I am going to talk about my house, uh, where I used to live before and the mystery behind it, and also I am going to talk about how my city is not my place to be. So guys, a quick intro. So basically I am from my city is like really boring. So I feel like I'm a party animal and like I'm really fun and I want to go to events every day. Now that I'm in college and I moved out to another place, यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन पहले जहाँ पे मैं रहती थी that place used to be like a living hell for me. And also the fact that, so guys, I live in Ahmedabad, and yeah, Ahmedabad is fantastic only during Navratri, that is in October month usually, or September or October. So it's fun only during Navratri, and for the rest of the month it's like useless for me because first I don't know Gujarati and it cancels out a lot of opportunities for me. I am an aspiring journalist, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो फिर they require a Gujarati speaking person despite of my communication skills, despite of my knowledge. They recommend me that I should move out and go to some other place. अरे मेरे को पता है दैट मैं मुंबई जाने के लिए ही आई हूँ. मुझे पूना, मुंबई, दिल्ली एंड द प्लेस, some place else is the place for me. I know that, but I'm born in the wrong city, guys. गाइस पहले मैं जहाँ पे रहती थी वो प्लेस इतनी गंदी थी. लाइक समटाइम्स आई वुड वेक अप एंड मेरे बाजू वाले जो ड्रॉर है उसमें से उठ के चूहा निकलता था और कभी कभी लाइक मेरे मुंह पे भी चढ़ जाता था. तो इतनी गंदी जगह थी वो. एंड स्मेल यूज टू बी एवरीवेयर, रियली बैड स्मेल. एंड dogs poop used to be like here and there, and it used to be like, आप उसको देखो ना बाहर से, सो इट वुड लुक लाइक अ जेल फॉर यू. लाइक वो 20 साल 30 साल पुरानी बिल्डिंग थी. एंड क्योंकि पापा लोगों को शौक होता है कि उनके हमारे चाचा जहाँ पे रहते हैं उधर ही रहने जाए, तो वहीं पे ले ली. एंड so we used to be really pissed off at the house, but still we tried to make the furniture better. So my room used to be all pinkish, girlish, barbish. Even though I was 11, I was fulfilling my dream, which was of younger me, of child me, dreaming about all these princesses and all that. And my brother's room used to be car. So his room used to be all car themed, like red and blue colors, and my room used to be pink and purple. We have still bought some cupboards and some of the things from my house, but still, even though my house is now white and beige and simple, I still like it. I don't know what happened to me. आई यूज टू थिंक कि मतलब थीम नहीं होना चाहिए, देन ही ओनली अच्छा लगे, लेकिन एक्चुअली थीम शुरू में बात में अच्छा लगता है एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड आउट ऑफ इट. सो coming back to the point, what is so mysterious about my previous home? So I think 2015 में हम लोग उधर शिफ्ट हुए थे, राइट? आफ्टर द डिमाइज ऑफ माई ग्रैंड मदर, आई रिमेंबर 2015 में हम लोग उधर शिफ्ट हुए थे. सो वो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी, तो शुरू से मेरी मॉम को या फिर किसी को भी इतनी पसंद नहीं आता था, और हम लोग यही सोचते थे कि पापा को बोलते थे और पापा कहते थे हम लोग 1 साल रहेंगे इधर एंड देन विल शिफ्ट. सो हमारे पहले जो भी इधर रहता था ना, वो 1-2 साल में चले ही जाते थे, बट हम लोग ही अकेले ऐसे थे हु सर्वाइव लाइक 8 years ओवर देयर, 8 to 9 years ओवर देयर. 2015 to 2023 तक हम लोग उधर थे, और वो घर इतना ख़राब था. हम लोग हल ये सब चीज़ें तो बता ही चुकी हूँ मैं. एंड द लिफ्ट मैन हु यूज्ड टू बी देयर, he told us a story. It's real story, like
हम लोग उन स्टोरी नहीं बनाई उनने, लेकिन उनने ऐसा कहा कि बहुत पहले लाइक जो पहले ओनर्स थे ना उधर, एंड ओवर देयर लाइक ड्राइंग रूम में एक लड़के ने सुसाइड किया था. इमेजिन समवन टेलिंग यू दैट तुम्हारे घर पे एक सुसाइड हुआ था. दैट इज़ वाई जो भी तुम्हारे घर पे रहने आता है वो चला ही जाता है. आई मीन वो घर इतना नेगेटिव था, लाइक नेगेटिव एनर्जी, लाइक वी कुड सेंस इट एमिटेड नेगेटिव एनर्जी. तो मैं तो रोती ही रहती थी. आई डोंट नो, especially in the year 2018, I used to cry like every day, all the fucking time. I used to cry and I could not sense the reason why. Okay, it could be the pressure from school, it could be many other reasons. And also the house was not very lucky for us, it was unlucky for us, I feel. I still thank the house, बट जब हम लोग उधर रहते थे तब हम लोग लाइक 2018 में तो मेरे पापा भी रोए थे, मम्मी भी रोई थी, मैं भी लाइक हम लोग रोते ही रहते थे. लाइक मेरा भाई भी, आई डोंट नो बट ही वॉज वेरी स्मॉल, बट या दैट हाउस यूज टू बी वेरी नेगेटिव फॉर अस. और जितने भी लोग हम लोगों के पहले जो रहने आए थे वो सब छोड़ के चले गए थे, एंड अकेले हम लोग ही ऐसे थे जो स्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड I had academic downfall over there. I had emotional breakdowns over there. I had like everything. And when I turned 20, I moved out to this house. How come this house turned out to be very positive for me? मेरे जो पिछले house थे उसमें I had like one or two favorite people, including my tuition teacher and one or two friends maybe. And कोई नीचे नहीं आता था, कोई event नहीं होता था, कुछ भी. Like I survived like 20 साल उधर, 19 साल उधर सर्वाइव करना बिना कोई एक्टिविटी, बिना कोई नीचे कुछ भी नहीं होता था, इतने गंदे कूड़ा पड़ा रहता था, कुत्ते की बास आती थी. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन अ प्लेस. आई यूज़ टू ड्रीम दैट तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम लोग सब देखते थे. तो आई यूज़ टू ड्रीम कि गोकुलधाम जैसी कोई सोसाइटी, गोकुलधाम जैसी सोसाइटी हो. जैसे गोकुलधाम में नहीं सब लोग एकदम मिलजुल के रहते थे एंड इवेंट सारे सेलिब्रेट होते थे. मेरी सोसाइटी में नॉट इवन अ सिंगल इवेंट. नवरात्रि यूज टू बी शिट. आई मीन नॉट शिट, सॉरी, इट्स गॉडेस फेस्टिवल, बट नवरात्रि यूज टू बी सेलिब्रेटेड वेरी सिंपली. लाइक everybody is moving and no foods, no content, nothing, no serving, no excitement, no stalls, no bracelet, nothing like that. Okay, in my new society something or the other is happening every day. I'm very grateful that it's more fun than my previous society. In society mein we have swimming pool, we have table tennis, we have like a full blown theater in our society, we have gym, we have what do we have else? So we have everything inside our society, but बाहर खाने जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है. यहाँ पे स्टॉल्स होते हैं फेस्टिवल्स के वक्त, बट बाहर रेस्टोरेंट्स काफ़ी के ऑप्शंस काफ़ी कम है. एंड या सो मेरी प्रीवियस सोसाइटी में ऐसा था कि सोसाइटी में कुछ नहीं था, घंटा कुछ नहीं था, बट बाहर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे. वी हैड थिएटर, वी यूज्ड टू गो लाइक either we used to go to the movies or to restaurants. And mall, Palladium Mall, you know, Alpha One Mall. Palladium तो मैं जाके अभी थक गई हूँ. इस सोसाइटी में आने के बाद भी we used to go every Saturday or weekends to the Palladium. And I think Zara and H&M are like really overrated. All they have is black and white and brown. So ऐसा मैंने एक मीम देखा था दैट मेरे मोहल्ले के बच्चों की फेवरेट दीदी मैं ही हूँ. एंड दैट इज़ ट्रू बिकॉज मैं जैसे ही वंस आई स्टेप आउटसाइड माई होम, ऑल I see his kids running towards me saying दीदी दीदी दीदी. And I love giving like you know 13-14 साल के बच्चे होते हैं तो आई लव. व्हाट इज़ दिस? ओ माय गॉड, एकदम से ये आ गया. मुझे लगा भाई चूहा तो नहीं बदला लिया मैं उस घर से, मजाक कर रही हूँ. सो
ओ दीदी 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 खेलोगे, एंड लाइक छोटे छोटे बच्चे भी मेरे को पूछते हैं कि प्ले हाइड एंड सीक विद अस एंड लाइक रन विद अस एंड लुक एट आवर डांस विद अस। सो बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है मेरा इधर। एंड ऑल्सो टीनेजर्स होते हैं, तो आई लव गिविंग देम एडवाइसेस। आई शेयर माई ओन एक्सपीरियंसेस अबाउट फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट स्टफ, एंड हाउ लाइक तो बच्चों के साथ खेल लेती हूँ, टीनेजर्स को एडवाइस दे देती हूँ। एंड मेरी एज, इवन तो कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, फिर भी हम लोग हाउस टूर कर ही लेते हैं। सो यू कैन सी दीज आर द लैम्प्स, एंड सो वेरी एस्थेटिक आई मस्ट से। अरे भाई अंधेरा हो गया। ये बाथरूम है जो बंद ही नहीं होता, आधा बंद होता है। सो जहाँ पे भी जाती हूँ मुसीबतें तो साथ साथ आ ही जाती है। Here, look, this is Bhagavad Gita, and look who is this. This is 3-year-old me, so cute, with my mother celebrating Christmas. Woohoo! चलो, तो ये है हमारा किचन, एंड ये है मेरा भाई का कार थीम्ड बेड जिसकी मैं बात कर रही थी। अभी ये हम लोगों का फ़ोटो बूथ बन चुका है और शेल्फ बन चुका है, क्योंकि उसको ऐसे स्टैंड कर दिया है। तो हम लोग सोच रहे हैं, मेरी मम्मी और मैं, दैट इसको फ़ोटो बूथ एंड शेल्फ बना दे। ये पहले बेड हुआ करता था गाइस, ट्रस्ट मी।